class, as we have you people have entered in your next semester in semester 3 in second year. So very welcome to all of you firstly, and just do let me know how's your exam of that 20 questions for jQuery you gave exam, right? Remember MCQ exam? Yes. So how was that exam? Good. Okay, fine. Perfect then. Very good. Very good. Okay. So basically, let us begin with our new subject and new tasks. So basically, the new subject which I'm going to teach you is about our uh, COA, the short form of the subject, and the actual this name of the subject is Computer Organization and Architecture. That is the actual name, but now as in we are going to have a revised syllabus. In our revised syllabus, the name of the subject itself is Computer Organization and Advanced Microprocessor. Fine. So earlier we were not getting into microprocessor stuff in the old syllabus, but now your syllabus is been updated and we are also going to study something new about microprocessors as well. Fine. Now when we are talking about computer organization and microprocessor, let us divide this particular subject itself in two partitions, that is computer organization and advanced microprocessors. Fine. So first we are going to begin with computer organization, and slowly and gradually we are going to move to our advanced microprocessor stuff. Fine. Advanced microprocessor is only in one unit we are going to have. Other than that, all our three major units are made up of our this particular computer organization itself. Fine. Now as do you people have syllabus of your TY of sorry of your third semester of second year? Yes, ma'am. okay, fine. Then in the very first place you are going to have the subject as a computer organization and advanced microprocessor. Just go through it once, or else wait a minute, let me show you. Practical है इसमें? No, you are not going to have practical. मैम थियरिकल सब्जेक्ट है? Yes. ICT के जैसा है? Sorry. ICT के जैसा है? Yes, sort of. Okay, fine. I have shared the syllabus with you. Is it visible to all of you? Yes, ma'am. Okay. Okay, fine. So basically, the name of the subject is Computer Organization and Advanced Microprocessor. Now, basically what we are going to study in this particular syllabus, we are going to have 4 units, fine, as in each and every subject. So far we used to have 4 units, right? The same way over here as well, we are going to have 4 units in this particular subject as well. So basically in first unit, we are going to discuss or study about computer organization, CPU operations, device controller, flip-flops वगैरह, वो all the no flip-flops not in first unit. So in a way in first unit we are going to discuss purely very much a theory portion. Though the subject itself is whole subject is theory only, theoretical subject itself, but we are going to have sums or circuits or something like that, fine, on later stage. मतलब कि in second unit or in third unit we are going to study about circuits as well, gates we are going to study, we are going to also study truth tables and all. But so far in the first unit we are going to have a purely theory portion. Fine. Now we are going to begin with our unit number 1. See, basically all these units are majorly independent units. If you don't know something about this stuff, then too we can begin with our unit
Fine. So all units are independent. So if you have some doubt in one unit, then it doesn't mean that it will carry into second unit as well. Fine. अगर एक यूनिट में डाउट है वो उसी के तक सीमित रहेगा और वहीं पे हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो दूसरे में हमें वहां पे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. अगर नहीं आता है कुछ एक यूनिट का तो दूसरे में प्रॉब्लम करेगा, ऐसा नहीं रहेगा. बट एज इन यू पीपल आर ऑल वेरी 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 स्मार्ट, सो you are not going to have any problem, you are not going to face any problem. Now the second unit is about data representation and digital logic. Now in this particular unit we are going to study about gates, we are going to study about flip-flops, we are also going to study about circuits as well, half adder, full adder, encoder, decoder, multiplexer, demultiplexer. So basically truth tables and our circuit diagrams, circuits and all diagrams we are going to study in this particular second unit. You people are going to definitely enjoy this particular unit number 2, because there you are going to draw circuits, draw diagrams and all, you are going to prepare truth tables and all. Fine. Now in the third unit we are going to have memory organization and management, where we are going to divide our memory into different parts, that is according to their functionality, according to their access and according to their capability. So those classification of memory we are going to study. We are also going to study about memory hierarchy, memory parameters, main manipulations, instruction, prefetch, then write, buffer, you know, right? Then cache memory, all these things we are going to discuss. Though all these terms are not so very new to you, ये कैश है, मेन मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, तो ये सारी चीजें आप जानते हो, राइट? पर यहाँ पे हम उसे रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा नया भी आपको सीखने मिलेगा. आप ये सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हो. आपने कौन से सब्जेक्ट में ये पढ़ लिया है पहले? ICT. हाँ जी, तो बिल्कुल यहाँ पे ये वो सारी चीजें तो यहाँ पे रहेगी. अदर देन दैट कुछ नया हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है? देन नेक्स्ट इज अबाउट माइक्रोप्रोसेसर्स. इन माइक्रोप्रोसेसर्स वी आर गोइंग टू स्टडी अगेन ऑल थियोरेटिकल पोर्शन. यहाँ पे ये सारा का सारा हमारा थ्योरी बेस्ड रहने वाला है. दिस माइक्रोप्रोसेसर इज ऑल अबाउट आवर थ्योरी पोर्शन. ये सारा का सारा हमारा थ्योरी में रहेगा. दूसरी बात आपको, सी इन फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी पीपीटी, बिकॉज पीपीटी में आपको कुछ भी यहाँ पे प्री डिफाइन नहीं रहेगा. आपको कोई भी सर्किट ड्रॉ करने के लिए मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है. जहाँ पे थ्योरी का कुछ होगा शायद से वी कैन प्रिपेयर सम पीपीटी और समथिंग लाइक दैट, बट अदर देन दैट वी आर गोइंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर बुक. This is your textbook, and the same book we are going to follow for this subject, that is Computer Organization and Advanced Microprocessors by Tripti Todia and Zakia Malik. Fine. और publisher है Kenge. I can't pronounce the name properly, I guess, but this is the name we are going. This is the book name which we are going to follow for the entire syllabus. अगर ये पूरा का पूरा आपका जो भी सिलेबस है हमारा COA का, वो पूरा का पूरा इसमें से कवर हो रहा है. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवांस माइक्रोप्रोसेसर्स बाय जाकिया एंड तृप्ति टोडिया. फाइन. दूसरे हैं आपके कुछ रेफरेंस बुक्स हैं. दीज टू आर योर रेफरेंस बुक्स. कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन बाय बी गोविंद राजालू, ये एक है, बाय टाटा माइक्रो हिल. Then advanced microprocessors and interfacing by Badri Ram, again publisher is Tata Micro Hill. तो बुक्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, बाय कर सकोगे आप. दूसरा, हो सके तब तक बुक आप एक ही बाय करना, एंड दिस वन इज योर बुक नेम. फाइन. ये बुक का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आपको आपके सिलेबस में भी है बुक का नाम, या फिर लिखना है तो लिख लो, मेंशन कर देना, ये बुक हम फॉलो करेंगे. एंड दिस पर्टिकुलर बुक इज हैविंग वेरी 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 like simple language which you can understand very easily, whereas these two books are little bit difficult to understand. Maybe it is also having a simple language only, but then too the textbook which we are going to follow is having very simple language which is very easily understandable and very easy to go through as well. Fine. And very small book only, it's not a very big and thick book we are going to have for this. Fine. Now let us begin with the introduction portion, or let us consider it as our first unit as computer operation. So when we are talking about computer operation, now what things come up to your mind?
like which are or what are considered as operations done by computer, or what are the computer operations? Can anyone tell me about the same? Yes, कंप्यूटर ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म करता है फॉर अस? आपके लिए आपको क्या लगता है कि कंप्यूटर क्या करता है आपके लिए, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करता है? एक्सेस करता है। सॉरी एक्सेस के लिए इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। Correct, input output processing, very good. Then other than that, what computer do for us? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। Yes, exactly. Storage or addition, multiplication can be done with what particular thing, what particular element of the computer? ALU. Correct. Good, very good. So basically, computer perform very and many operations for us. What not in a way? We can these days we can do each and everything with the help of computer. ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कंप्यूटर की हेल्प से नहीं कर सकते हैं. आपके सर्फिंग से लेके, सर्चिंग से लेके, आपके प्रोडक्ट्स बाय करने से लेके, ऑनलाइन शॉपिंग से लेके, एंटरटेनमेंट मूवीज डाउनलोड करने से लेके, गेम्स प्ले करने से लेके, किसी को मेल करने से लेके, टेक्स्ट मैसेज करने से लेके, every single thing can be done with the help of computer. You can play songs, you can play games, what not in a way. Fine. So these are the computer operations that we know. Fine. That computer do for us. Now how computer works internally, that's the thing, that's what we are going to study in this particular unit number 1. अभी तक हमें यही पता है कि हमारे लिए कंप्यूटर क्या कर रहा है, बट इन अ वे वो सारा कुछ अचीव करने के लिए हम गेम प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, हम डेटा को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, हम वर्ड का डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, हम मूवीज देख सकते हैं, व्हाट नॉट, मतलब क्या नहीं, मेल कर सकते हो, सर्फिंग कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो. ये सारी चीजें जो हमारे लिए परफॉर्म हो रही हैं, वो करने के लिए, वो अचीव करने के लिए कंप्यूटर को भी तो इंटरनली कुछ सारे टास्क परफॉर्म करने पड़ते होंगे. तो वो टास्क कौन से हैं, वो कैसे इंटरनली परफॉर्म होते हैं, कैसे वहां पे डेटा का एक्सचेंज कंप्यूटर के अंदर, सर्किट्स के अंदर होता है, सिस्टम के अंदर कैसे डेटा ट्रैवल करता है, कैसे डेटा को हम शेयर करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे इन वेरी ब्रॉड सेंस. हम बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं देख रहे हैं, हम ऊपर से मतलब देख रहे हैं, not very much into detail. Fine, for this subject. So basically when we are talking about user and computer, fine, so now we know what are the users demand, that is use as a user हमारी डिमांड क्या होती है कि कंप्यूटर हमारे लिए क्या करे. कंप्यूटर give us entertainment. वो एंटरटेनमेंट कब मिलेगा, जब हम डिमांड करेंगे. हम डिमांड कैसे करेंगे? You tell me, आप how we can demand entertainment from the computer. हम कंप्यूटर से डिमांड कैसे करते हैं? How we are going to demand from computer? इवेंट्स. Sorry? इवेंट्स की मदद से. Okay, events. कीवर्ड्स की मदद से. Events. Sorry, क्या बताया आपने? इवेंट्स की मदद से हम कीवर्ड मदद से. हाँ, that is there. दूसरा क्या? Sorry, yes, sorry. कीबोर्ड की मदद से. ओके, कीबोर्ड ले ले या फिर माउस ले ले. तो अभी व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? ये कीबोर्ड है या फिर ये माउस है? व्हाट्स दिस? करेक्ट, इनपुट डिवाइसेस. करेक्ट, इनपुट डिवाइसेस. सो बेसिकली दीज आर द इनपुट डिवाइसेस. अभी इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से, इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम यहाँ पे इनपुट देंगे सिस्टम को कि सिस्टम को हमारे लिए क्या परफॉर्म करना है, एंड अकॉर्डिंगली सिस्टम इज गोइंग टू टेक सम स्टेप्स जो कि वो हमें वो चीज अवेलेबल करवाने के लिए परफॉर्म करेगा. तो अभी ये पूरा का पूरा कैसे वर्क करता है, लेट अस सी इट विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम. अभी ये जो डायग्राम है, इट शोज अस दैट, जस्ट अ मिनट. Okay, the diagram is visible to all of you? Yes, ma'am. Fine. So this is a very complex diagram we can consider as like where, see, this is our computer system
with the help of the system we want some entertainment. In terms of entertainment we want to play some music. Fine, हमें कुछ म्यूजिक सुनना है with the help of the system. तो उसके लिए क्या करना रहेगा हमें, यहाँ पे ये क्या है, हमारे कीबोर्ड है और माउस है. These are nothing but our input devices as we just discussed. अभी यहाँ पे with the help of this wire that is the cable ये connected है. अभी these days we don't need to have always wired devices, we are also having wireless devices as well. So यहाँ पे wired या wireless devices की मदद से हम system में input देंगे. आपने system में input दे दिया कि play the music, fine. अभी ये music जो play करेगा तो वो आपको कहाँ से सुनाई देगा, with the help of speaker, fine. So for that purpose we need to have speaker as well as a output device. Fine. दूसरा, suppose you want to have some printout from your system, आपको printouts निकलवाने हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से क्या दोगे, टास्क दोगे. आपका प्रिंटआउट के लिए एक टास्क आपने दे दिया सिस्टम को कि सपोज वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है जिसका प्रिंटआउट निकालना है. तो प्रिंटआउट निकलेगा कहाँ से, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंटर. सो प्रिंटर इज अगेन व्हाट, योर आउटपुट डिवाइस. अभी आपने सपोज मूवी देखना है, मूवी देखने के लिए आपने सिस्टम को यहाँ पे कुछ टास्क दे दिया है, आपने वो ओपन किया मूवी आपका VLC मीडिया प्लेयर के अंदर सपोज, ठीक है. तो वो दिखेगा कहाँ पे, कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर. तो वो क्या हो गया हमारे लिए, नथिंग बट योर आउटपुट डिवाइस. सो ये जो हमारा पूरा टास्क है, यूजर एंड कंप्यूटर ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस इनपुट डिवाइसेस एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आउटपुट डिवाइसेस. फाइन. तो उसकी मदद से हम सिस्टम के साथ में इंटरैक्ट करते हैं. अदर देन दैट दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या चाहिए हो कि अगर हम मूवी देख रहे हैं तो मूवी कहाँ पे, कहीं पे होना भी तो चाहिए, ठीक है. तो उसके लिए क्या जरूरत है हमें, स्टोरेज डिवाइस का. तो कंप्यूटर शुड आल्सो हैव स्टोरेज डिवाइस एज वेल. सो स्टोर जहाँ पे किया हुआ है वहां से हम रिट्राइव करेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे और हमें वहां पे वो इंफॉर्मेशन या डेटा के फॉर्मेट के अंदर वो चीजें हमें डिस्प्ले होने वाली हैं. आर वी कंफर्टेबल विद दिस थिंग? Yes, ma'am. ओके फाइन. अभी ये हमने जो बात किया है, ठीक है, उसके अलावा ये जो सारी चीजें इंटरनली होगी वो कैसे परफॉर्म हो पाएगी. हमने अभी तक जितना देखा ना, दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स व्हिच वी कैन सी. सो व्हिच वी कैन सी एंड टच डज मींस दीस आर नथिंग बट आवर हार्डवेयर्स. फाइन. नाउ ये इंटरनली सिस्टम में कैसे वर्क होता है, हाउ इज इट गोइंग टू वर्क इंटरनली विद इन द सिस्टम. कंप्यूटर के अंदर इंटरनली कैसे वर्क होगा ये, बसेस के थ्रू. ओके, बसेस. अदर देन दैट अगर हम और ज्यादा उसे ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें, मतलब कि हम जनरलाइज्ड फॉर्म में कोई आप वर्ड बोलो तो क्या हो सकता है. हाँ जी बिल्कुल, हमारे सॉफ्टवेयर की हेल्प से वी कैन परफॉर्म ऑल दिस थिंग्स इंटरनली विद इन द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर. अगर हमारे पास सारे हार्डवेयर हैं, ठीक है, पर कंप्यूटर के अंदर OS ही नहीं है, इज आवर सिस्टम गोइंग टू वर्क फॉर अस? No. Fine, correct. So without software our system is just a useless. So system के अंदर वो सॉफ्टवेयर होने जरूरी है, ठीक है. अभी सॉफ्टवेयर किससे बनता है, what is called as software for us? Collection of instructions. हाँ जी बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड. So collection of instructions, set of commands, set of instructions is nothing but our software, जिससे हमारा सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है. अभी ये जो सॉफ्टवेयर है ये रहेगा कहाँ पे, where the software is going to reside, ये कहाँ पे रहने वाला है. Storage medium. Correct, in the storage medium, that is in the memory unit. All these things, all these are softwares are going to reside. So basically यहाँ पे सिस्टम को वर्क करने के लिए तीन चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, that is हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड मेमोरी यूनिट. मेमोरी के अंदर सॉफ्टवेयर स्टोर होंगे, सॉफ्टवेयर की मदद से हार्डवेयर चलेंगे, ठीक है. ओके, तो दिस इज हाउ आवर नॉर्मल टिपिकल कंप्यूटर जो होता है वो वर्क करता है.
सो डेटा लेगा यूजर के पास से, उस कहाँ से, इनपुट डिवाइस से, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और हमें कुछ आउटपुट देगा। तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये वाला आप जो पूरा जो लॉजिक है वो आप जानते हो, आप पढ़ भी चुके हो पहले, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ये डेटा जो है वो आउटपुट डिवाइस पे आए भी और साथ में स्टोर भी हो जाए सिस्टम में, तो हमें जरूरत रहेगी यहाँ पे हमारे स्टोरेज मीडियम की, दैट इज आर मेमोरी यूनिट की हमें यहाँ पे जरूरत रहेगी, ठीक है। तो दिस इज आर वेरी सिंपलेक्स टर्म में हमने यहाँ पे देखा हमारा टिपिकल कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि हाउ कंप्यूटर एंड प्रोग्रामर, या फिर हाउ कंप्यूटर एंड प्रोग्राम आर गोइंग टू, okay, how computer and programmer are going to work on the system together. So basically I have changed the diagram. It is visible to all of you? Okay, fine, perfect. Now see here, there are two entities. One is your computer, another is your programmer. So programmer जो है वो क्या करेगा? What's the task of a programmer? Programmer will write a set of instructions in terms of program and give it to the computer. Now computer is going to proceed this program and give the output. Processed output is given to the programmer. So basically यहाँ पे जो सारा आपका टास्क है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो किसकी मदद से बनता है? नंबर ऑफ प्रोग्राम्स की मदद से। प्रोग्राम्स के अंदर क्या रहेगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहेंगी, ठीक है। और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कौन यहाँ पे बनाएगा, कौन लिखेगा? तो दैट्स द रोल ऑफ अ प्रोग्रामर। तो ये अभी तक हम जानते हैं कि प्रोग्रामर है वो प्रोग्राम लिखेगा। प्रोग्राम किससे बनता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बनता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलके हमारा सॉफ्टवेयर बनता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर जाता है, कंप्यूटर के ऊपर उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद में आउटपुट मिलता है। आउटपुट डिवाइस के ऊपर जिसको प्रोग्रामर देखता है और उसके ऊपर से आगे काम शुरू करता है, ठीक है। पर जब हम एक्चुअल में रियल टाइम रियल वर्ल्ड में देखने जाए तो सिर्फ इतना नहीं होता है। आप खुद भी जानते हो कि आप अगर सी का प्रोग्राम है तो सी का प्रोग्राम लिखने से पहले आपने क्या सीखा था? आई गेस आपने शायद से फ्लो चार्ट सीखे होंगे, राइट? यू प्रिपेयर्ड अ फ्लो चार्ट इनिशियली, आपने फ्लो Yes, चार्ट ma'am. सीखे थे, right? Okay, so this is your actual chain, how a programmer is going to solve a problem. Fine. प्रोग्रामर कैसे ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, मतलब कि कैसे वो पूरा का पूरा ये जो कोड है वो बनाता है, तो वो ये है बेसिकली। वेरी फर्स्टली प्रॉब्लम इज गिवन, मतलब कि आपके पास प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम मतलब कि डेफिनेशन आ गया है। आपको क्या करना है? ये आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करने की जरूरत है। व्हाट्स माय रिक्वायरमेंट्स, व्हाट्स माय नीड। तो नीड आइडेंटिफिकेशन होगा। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू गिव ऑल दिस रिक्वायरमेंट्स, ऑल दिस नीड्स टू द फ्लो चार्ट डिजाइनर, where we are going to design the flow chart. In flow chart हम यहाँ पे हमारे प्रोसेसेस क्या है, हमारे इनपुट्स क्या है, आउटपुट क्या मिलेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे बाइफरगेट करेंगे इन आवर फ्लो चार्ट डिजाइनिंग। आफ्टर दैट इंस्ट्रक्शंस एंड मेथड्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो बाद में हमें देना है उसे कोड करने के लिए और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो कोडिंग और सॉफ्टवेयर में हमारा जाता है वो पार्ट। उसके बाद में क्या आएगा? हमारा सॉफ्टवेयर कोड हो गया है। कोड होने के बाद हम उसके ऊपर डिबगिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। डिबगिंग के बाद में अगेन द सेम प्रोसेस। अगर कुछ गलती आती है, अगर कहीं पे कुछ लूप होल है, कहीं पे कुछ एरर आया, हमारा सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, व्हाटएवर इट इज, तो वापस से जाएंगे हम सॉफ्टवेयर के कोडिंग के ऊपर और ये लूप फाइनली चलता रहेगा जब तक हमारा इंटेंडेड या फिर हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट हमें नहीं मिलता है तब तक। आप सेम वे सी का प्रोग्राम भी करते होंगे, राइट? सी के प्रोग्राम में क्या करते थे? आपको प्रोग्राम का डेफिनेशन मिलता था कि ऐड टू नंबर्स। ऐड टू नंबर्स क्या हो गया? आपका प्रॉब्लम हो गया। उसको आप डिफाइन करते थे कि फिर रिक्वायरमेंट करते थे क्या क्या चीजें की जरूरत है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स की, यूजर के पास से दो नंबर्स लेने हैं और यूजर को आउटपुट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लिए, फिर आपने फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाओगे। फ्लो चार्ट के अंदर आइडेंटिफाई करोगे कौन सा फंक्शन बनाने का जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे फिगर आउट कर लिया। देन वी आर गोइंग इनटू आवर सॉफ्टवेयर एंड कोडिंग। यहाँ पे हम हमारे प्रोग्राम को कोड करेंगे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ वगैरह, वो सारा का सारा लॉजिक हमारा यहाँ पे आएगा। आफ्टर दैट हम उसे टेस्ट करते हैं, डिबग करेंगे। अगर कुछ गलती आई तो वापस से यहाँ पे सॉफ्टवेयर कोडिंग में जाएंगे एंड फिर हो जाता है फाइनल। तो क्या आएगा? आउटपुट दैट इज बीन प्रिंटेड ऑनटू योर स्क्रीन, ऑनटू योर सिस्टम।
अल्टर F5 करेंगे और आपको आउटपुट दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल रियल टाइम प्रोग्राम होता है, उसमें इतना टास्क लगता है, इससे तो बहुत ज्यादा लगता है। अभी के लिए ये सब्जेक्ट के लिए हमारे लिए इतना जानना जरूरी है, इससे ज्यादा हमें बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा बेसिक था, जो कि हमें ये पहले वाले सिस्टम में देख के लगता था कि इतना करेंगे हो जाएगा, बट इंटरनली इट टेक्स few more steps as well. Fine. Are we clear with this thing? समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. ओके Yes, फाइन, ma'am. ओके। अभी नेक्स्ट बारी आती है अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? Yes, which are the different characteristics of a computer? कंप्यूटर की विशेषता क्या है? मतलब कि सी ह्यूमन कैन आल्सो कैलकुलेट, ह्यूमन जो है वो हाँ जी सॉरी, कैलकुलेशन इजी बनाता है। कैलकुलेशन इजी बनाता है। इजी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? वो स्पीड में कर सकता है हमारे लिए। यस मैम। फाइन। तो हमें अगर बहुत सारे सपोज नंबर्स दिए जाए तो हम शायद से उसके अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे ये जो मतलब हम डेफिनेटली ऑल आर नॉट शकुंतला देवी, सो काफी सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। पर यहाँ पे अगर कंप्यूटर को दिया जाए तो कंप्यूटर कैन परफॉर्म दैट मच मोर फास्टर देन अ ह्यूमन कैन डू। फाइन। तो एक तो स्पीड आ गया हमारा, स्टोरेज। हाँ बिल्कुल। अभी स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड किस में हमारी रहती है? कंप्यूटर की स्पीड जो है वो किस में हम मेजर करते हैं? गीगाहर्ट्ज। हाँ गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज। तो इस क्यों ये हर्ट्ज में कैलकुलेट किया जाता है? व्हाट्स द रीजन? स्टैंडर्ड यूनिट है मैम, इसलिए। हाँ स्टैंडर्ड यूनिट है, करेक्ट। बट बेसिकली यहाँ पे कंप्यूटर जो है उसके इंस्ट्रक्शंस या सॉफ्टवेयर के इनपुट आउटपुट वगैरह है वो किस में ट्रैवल करेंगे? सिस्टम के अंदर भी कंप्यूटर क्या जनरेट करता है इनपुट आउटपुट करने के लिए? सिग्नल्स। करेक्ट करेक्ट, कंप्यूटर विल जनरेट सिग्नल्स, और सिग्नल्स जो है उसे हम कौन से पर्टिकुलर स्पीड के यूनिट में मेजर कर सकते हैं? इन हर्ट्ज। फाइन। दैट्स व्हाई यहाँ पे मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज के अंदर हमारे यहाँ पे मेजरिंग यूनिट्स है हमारे पास, ठीक है। तो वो हो गई एक चीज। दूसरा, जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर कौन से ऑपरेशंस हमारे लिए परफॉर्म कर सकता है? एक तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, जैसे अभी आपने बोला कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन परफॉर्म करेगा ऑन, या मतलब कि ऑन डेसिमल ले लो या फिर ऑन फ्लोटिंग पॉइंट ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। और दूसरा हमारे लिए वो परफॉर्म कर सकता है लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस में क्या क्या आ सकता है कि दो नंबर्स को हम कंपेयर करें, या फिर अल्फा न्यूमेरिक को भी कंपेयर कर सकते हैं, अल्फाबेट्स को भी इवन कंपेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने सी में कर चुके हैं, राइट। आप सी में ये सारा कुछ कोड अपने आप से कर चुके हो, पढ़ चुके हो, ठीक है। जहाँ पे आप लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट भी यूज करते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह भी यूज करते थे। तो ऑल दिस थिंग्स आर बीन डन। फाइन। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड में हमारे लिए सिस्टम कर सकता है, जबकि एज ए ह्यूमन के लिए वो जनरेट करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। जैसे कि आपने फिबोनाची सीरीज जनरेट करते थे, आप सिस्टम को सिर्फ इतना बता देते थे कि 1 से लेके आपको 1 लाख तक की वो सीरीज जनरेट करनी है, तो वो बिल्कुल इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो आपको आउटपुट दे देगा। अगर ह्यूमन वो सोचने बैठेगा तो ह्यूमन वहां पे 100 तक भी नहीं जा पाएगा उतने टाइम में, तो राइट, कितना भी स्पीड में ले ले। आर वी क्लियर विद दैट स्पीड पोर्शन, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक? यस मैम। ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सपोज हमारा रिलायबिलिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी ओवर हियर? रिलायबिलिटी का मतलब क्या है हमारे लिए यहाँ पे? सिक्योरिटी मैम। ओके, सिक्योरिटी। इन सिक्योरिटी मतलब कौन से, कैन यू गिव एनी एग्जांपल अबाउट रिलायबिलिटी? Like we can trust upon their security patterns or privacy provided by the Windows or operating system. That is system give us some, suppose जैसे हम बात करें कि हमारे सेल फोन का, तो उसमें हम पासवर्ड है, पिन है, इवन आप पैटर्न्स बना सकते
सकते हो, फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन, फेस रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें वो क्या आपको सिक्योरिटी देता है आपके सेल फोन को। तो सेम वे हमारे कंप्यूटर के लिए भी फेस रिकॉग्नाइजेशन है, थंबप्रिंट भी इवन है कुछ सिस्टम्स के अंदर, लाइक व्हाट एल्स दैट पासवर्ड एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन भी है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई हमारी सिक्योरिटी पर्पज से। लेकिन जब हम बात करते हैं ना रिलायबल होना, रिलायबल होने की मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर ह्यूमन के ऊपर आप रिलाय करने जा रहे हो और ह्यूमन को अगर आपने 50 डिजिट 50 नंबर्स का 50 नंबर्स है, डिफरेंट 50 नंबर्स है, उसका आपने कैलकुलेट करने के लिए दिया है, मल्टीप्लिकेशन दिया, डिवीजन दिया, वॉट एवर इट इज फाइन, सपोज से मल्टीप्लिकेशन दिया है 50 डिफरेंट नंबर्स का, तो उसके अंदर ह्यूमन से क्या हो सकता है कि शायद से गलती हो जाए। यस, लेकिन कंप्यूटर जो है वो जैसा आप उसे इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंगली जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसा सॉफ्टवेयर अगर आपका करेक्ट है तो वो बिल्कुल आपको करेक्ट आउटपुट देने वाला है, ठीक है। तो वो चीज एक तो है कि मतलब कि वो रिलाय कर सकते हैं हम, दैट इज द रिलायबल थिंग कि वहां पे फेलियर नहीं होने वाला है। जबकि यूजर अगर कोई ह्यूमन करने चाहेगा तो देयर कैन बी अ केस, देयर कैन बी चांस कि फेलियर आ सकता है। लेकिन अगर कंप्यूटर के बारे में देखें तो वहां पे फेलियर होने का चांस ही नहीं है। एट द सेम टाइम अगर ह्यूमन की और कंप्यूटर की हम अगर देखें ना, तो अगर ह्यूमन है, सपोज आप अगर बहुत ज्यादा बोर्ड हो गए हो या फिर आप बहुत ज्यादा थक गए हो, आप कुछ लिखने बैठोगे तो शायद से कोई आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, दैट कैन बी द केस, फाइन। जरूरी नहीं कि हमेशा, कभी हो सकता है। बट अगर सिस्टम के बारे में देखें तो आपने नोटिस किया होगा कि वर्ड के अंदर जो उसका स्पेलिंग चेकर है वो ऑल टाइम हमारे लिए अवेलेबल रहता है। आपने कुछ भी लिखा, अगर गलती है तो वहां पे वो मार्क करके हमें दिखा देता है, रेड मार्क, ठीक है। अगर इवन हमने कुछ वहां पे कोई सेंटेंस के फॉर्मेशन में भी कुछ गलती किया है तो वहां पे भी वो हमें रेड मार्क दिखा देगा। तो इन अ वे दैट सिस्टम वी कैन रिलाई, फाइन। वेयरएज ह्यूमन भी उतना रिलायबल नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ दिस calculation, in terms of the spelling checking and all. Are we comfortable with this reliability? Yes, ma'am. Okay. Now the third is about accuracy. Now you tell me what do you mean by accuracy? Computer perform 100% accuracy से वर्क करता है। हाँ, कंप्यूटर बिल्कुल 100% एक्यूरेसी से वर्क करेगा हमारे लिए। से फॉर एग्जांपल अगर कोई सपोज फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, मतलब कि डिजिट है एंड बाद में हमने 5 प्रिसीजन तक उतने हमने हमारे पास फ्लोट में बाद में नंबर्स हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट के बाद में तो उसके अंदर अगर आपको ऐसे सपोज 1000 ऐसे फ्लोटिंग पॉइंट्स का कैलकुलेशन करना है, ठीक है, तो क्या वहां पे हो सकता है कि आप राउंडिंग करते करते शायद से कोई अलग ही नंबर पे पहुंच जाओ। अब राउंड कर दिया आपने, मतलब कि इंटीजर में राउंडिंग कर दिया कि 0.5 से कम है तो एक डाउन हो गए, 0.5 से प्लस है तो आपने एक और बढ़ा दिया उसके अंदर। ऐसा अगर कुछ आप करते गए तो लास्ट में पता चला कि 10 या 12 नंबर का कुछ डिफरेंस आ गया है फॉर अ ह्यूमन। लेकिन कंप्यूटर का अगर देखने जाए तो कंप्यूटर हमें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर करेगा, राइट? Yes, sir. ओके। एंड नेक्स्ट इज, किसी ने अभी बताया था, क्या बोला था, मेमोरी यूनिट के बारे में, स्टोरेज के बारे में बोला था किसी ने। तो अगेन ये स्टोरेज, तो स्टोरेज में क्या आएगा ना, यू एक्सप्लेन मी अबाउट स्टोरेज। Storage medium size. हाँ, ओके, सो बेसिकली जब भी हम स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो स्टोरेज कितने टाइप्स के हमारे पास रहेंगे, 2 टाइप्स के। कि एक बहुत बेसिक अगर हम देखें कि जैसे कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, उसके बारे में, कि जो सिर्फ सेल फोन यूज करते हैं या जिन्हें पता है कि पेन ड्राइव जैसा कुछ होता है तो उनके लिए। तो क्या हो गया यहाँ पे 2 टाइप्स के स्टोरेज हो गए, एक हो गया इंटरनल स्टोरेज, दूसरा हो गया हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज मतलब क्या होगा, सिस्टम के अंदर का मेमोरी। एंड एक्सटर्नल स्टोरेज मतलब क्या हो गया हमारा, सपोज आपका फ्लॉपी डिस्क है या फिर आपका पेन ड्राइव है हमारा, या फिर हमारा हार्ड डिस्क है, मतलब कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो वो सारी क्या हो गई हमारी एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट्स, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, फाइन। अभी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो उसके एडवांटेज क्या मिलेगा हमें, एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलेगी। हाँ, एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलेगा, दैट इज देयर completely right. Other than that, what is the advantage of using it? Removable होगा मैम। Removable, okay, हम we,
इट्स अ मूवेबल, राइट, इट्स अ मूवेबल, हाँ वी Portable कैन, as well. हाँ पोर्टेबल मूवेबल होगा वो, कि आपने सपोज आप घर पे हो, आपको वहां से सपोज कॉलेज आ रहे हो, कॉलेज पे आपको प्रोग्राम दिखाना है, तो आप अपने पेन ड्राइव में वो प्रोग्राम्स लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपने घर के सिस्टम से आप कॉलेज के सिस्टम तक वो ले आए, तो वो क्या हो गया हमारे लिए, पोर्टेबल हो गया, मूवेबल हो गया। दूसरा क्या रहेगा यहाँ पे एडवांटेज, मूवेबल है तो मूवेबल होने की वजह से ये एक्सटर्नल मेमोरी में क्या एडवांटेज देता है, डेटा डुप्लीकेशन रहेगा, जिसकी वजह से डाटा सिक्योर रह सकता है अगर हमारे हाँ लैपटॉप में से डेटा, read हो रहे हैं। हाँ सपोज मान लेते हैं सपोज कोई नेचुरल कैलेमिटी आया, सिस्टम पड़ा था, बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन उसके अंदर पड़ा था, और वहां पे सपोज कभी नहीं होना चाहिए पर अर्थक्वेक हुआ और वो बिल्डिंग टूट गया और उसके अंदर हमारा सिस्टम भी गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा डेटा सारा का सारा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसका मूवेबल डिवाइस, मतलब कि कोई आपने सपोज रिमोट लोकेशन पे आपने वो मूवेबल डिवाइस अपना रखा है जिसके अंदर वो डेटा पड़ा हुआ है, तो डेटा तो आपके पास रहेगा, भले ही सिस्टम गया है बट डेटा इज देयर विथ यू, राइट। तो वो एक एडवांटेज रहेगा। सो बेसिकली दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, दैट्स द स्पीड, देन योर रिलायबिलिटी, देन एक्यूरेसी एंड स्टोरेज। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट्स अबाउट आवर डिजिटल कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को छोड़ देते हैं, उससे पहले हम सिग्नल्स के बारे में बात करते हैं। सिग्नल्स कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास? 2 type. हाँ जी, बिल्कुल। Two types of signals we are going to have. The one is analog signal and the other is digital signal. अगर हम analog signal के बारे में बात करें तो analog signal जो है उसे हम क्या बोल सकते हैं? और it's a continuous signal. Can we say so? It's a continuous signal. Continuously वो हमारे फिजिकल वेरिएबल प्रेशर, मतलब कि जिसकी स्पीड है, वोल्टेज है, उसकी मदद से वो मूव होता रहता है। एनालॉग सिग्नल जो है इट विल कीप चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली। आप देखो कंटिन्यूअसली उसके ये कर्व्स है उसमें चेंज आता ही रहेगा, मतलब कि अभी थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा डाउन डाउन डाउन, यहाँ से बिल्कुल डाउन, अप अप अप, मतलब कंटिन्यूअसली उसमें कुछ ना कुछ चेंज है, ठीक है। अगर हम एक्स वाई यूनिट के ऊपर देखें, एक्स और वाई हमारे डायमेंशन के ऊपर, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये स्लैंटेड, मतलब कि ऐसे क्रॉस जा रहा है, फिर यहाँ पे गया, कंटिन्यूअसली इसमें चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो वो हो गया हमारा एनालॉग सिग्नल। और अगर डिजिटल सिग्नल के बारे में हम बात करें तो डिजिटल सिग्नल जो है उसमें या तो डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, जीरोस एंड वंस में होते हैं। दैट इज योर स्विच कैसे वर्क करता है हमारा, ऑन ऑफ, ब्लैक व्हाइट, ये जो सारी चीजें है, वैसे ही हमारा डिजिटल सिग्नल वर्क करता है। मतलब कि नीचे क्या है, 0 1 0 1 0 1, वैसे ही वो वर्क करता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी। क्या, जीरोस एंड वंस। तो हमारा डिजिटल सिग्नल जो है, ये सिग्नल, इसके हेल्प से हम डेटा का ट्रैवल करवाएंगे सिस्टम के अंदर। फाइन। कंप्यूटर के अंदर जब एक बस से दूसरे बस में या फिर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जब डेटा ट्रैवल करता है विद द हेल्प ऑफ द केबल्स, तो वो किसकी मदद से ट्रैवल करेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल सिग्नल्स। क्यों? क्योंकि वो जीरोस एंड वंस के अंदर है। और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझेगा? बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या है? जीरोस एंड वंस। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर, ये कहाँ से आ गया? So that's why we are going to use this particular digital signal over here in our digital computers. Is that okay? ओके दूसरी बात, यहाँ पे नंबर्स का तो चलो जीरो वंस में कन्वर्जन ठीक है। अभी अगर हम देखें कि हमारा टेक्स्ट में भी डेटा होता है, मतलब कि सपोज हमने लिखा हुआ है कि दिस इज LJBCA, फाइन, ऐसा हमने लिखा हुआ है, तो ये कौन सा डेटा हुआ? टेक्स्ट में हुआ, मतलब कि अल्फाबेट्स में हुआ। तो ये जो सारा डेटा है हमारा, वर्ड्स है जिसके अंदर लेटर्स हैं, सपोज कुछ टेक्स्ट मतलब कि सेंटेंस है पूरा, तो ये सारा डेटा है वो कैसे स्टोर होगा? क्या वो अल्फाबेट्स में स्टोर होगा? नहीं, वो भी अगेन बाइनरी में कन्वर्ट हो गए, जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट हो गए, बाइनरी में स्टोर होगा, ठीक है। अभी इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? कि ये जो हम कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, इट्स कॉल्ड एज योर मशीन लैंग्वेज, फाइन। जिसे ह्यूमन समझता है
वो और कंप्यूटर समझता है, मतलब कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज टू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। आप लोग गूगल असिस्टेंस यूज करते हो, ठीक है, गूगल असिस्टेंस में हम जब आप यू ओनली नीड टू स्पीक लाइक आप सिर्फ इतना बोलोगे कि LJBCA फाइन, तो हमें LJBCA के बारे में वो सारा डेटा वहां पे आ जाता है हमारे लिए। तो वो सिस्टम जो है हमारा कंप्यूटर, हमारा जो सेलफोन है, हमारा गूगल असिस्टेंट है, वो किसको समझता है, जीरोस एंड वंस को समझता है सिर्फ। और हम क्या 0 1 में पूरा समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। और वो हमें इनपुट लेता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से, कन्वर्ट करता है सिस्टम के अंदर मशीन लैंग्वेज में, और हमें आउटपुट देता है अगेन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है वो किसकी मदद से ये होगा, सिग्नल की मदद से। और कौन से सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स। आर वी क्लियर विद दिस डिजिटल सिग्नल्स? Yes, ma'am. ओके फाइन। नेक्स्ट इज अबाउट हार्ड, हाँ जी बोलिए। एनालॉग सिग्नल का कहाँ यूज होता है? अनालॉग सिग्नल्स का आप यूज कर सकते हो, सपोज आपके फोन के अंदर भी आप यूज कर सकते हो। देन अनालॉग सिग्नल्स का दूसरा कहाँ पे यूज कर सकते हो आप, हाँ आप दूसरा कुछ जो रेडियो सिग्नल। क्लॉक में यूज कर सकते हो। इवन कौन सा आप यूज कर सकते हो, आप इवन मिक्स करके भी सिग्नल्स का यूज कर सकते हो। दो आप अलग अलग अनालॉग एंड डिजिटल दोनों सिग्नल का यूज करके भी आप उसका यूज कर सकते हो। दूसरा आप कहाँ पे कर सकते हो, आपको किसी को पता है? वो अर्थवेक आता है ना मैम, तब ये एनालॉग सिग्नल का उपयोग होता है। ओके अर्थवेक कितना बड़ा आया है इसलिए जानने के लिए। ओके ओके गुड। देन हम सिस्मोग्राफ। देन हम कर सकते कहाँ पे, हमारे जो ये माइक्रोफोन्स में होता है, माइक्रोफोन्स में अनालॉग सिग्नल रहेगा, क्योंकि माइक्रोफोन के अंदर हमारा जो वॉइस है, हम जो सुनाई दे रहा है, वो वॉइस जो होता है वो कंटिन्यूअस सिग्नल नहीं होता है, हम कॉन्स्टेंटली नहीं बोलते, हम हमारा पिच कभी हाई कभी लो, कभी वर्ड्स आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो माइक्रोफोन्स में भी अनालॉग सिग्नल आप यूज कर सकते हो। इमेज में भी कर सकते हाँ देन आप दूसरा कर सकते हो, कहाँ पे कर सकते हैं उसे, डेटा और इमेज। डेटा, हाँ डेटा और इमेज में भी कर सकते हो। थर्मोमीटर में होता है, हाँ दैट्स बेसिक एग्जांपल के अंदर होता है, अनालॉग सिग्नल होता है। तो इन अ वे दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अनालॉग सिग्नल्स जहां पे हम यूज कर सकते हैं। इवन अनालॉग कंप्यूटर्स आर आल्सो देयर, अनालॉग कंप्यूटर के अंदर भी अनालॉग सिग्नल्स चलते हैं, बट दिस डेज वी आर ओनली हैविंग डिजिटल सिग्नल्स एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। तो उसी डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर ही अभी हमारा चल रहा है, ठीक है। आर वी क्लियर? Yes, sir. ओके फाइन। जरूरत है। ओके नेक्स्ट, सो बेसिकली ये हमारा हो गया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। अभी अगर हम बात करें रिगार्डिंग आवर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर के अंदर हम क्या क्या बोल सकते हैं कि सपोज हमारा सर्किट बोर्ड है, या क्या हमारे सेंसर्स हैं, कीबोर्ड हैं, सेंसर्स हैं, हमारा स्क्रीन है, कंप्यूटर का माउस है, तो या फिर क्या बोलते हैं हम उसको, ये सीपीयू होता है, राइट है हमारे पास, तो सिस्टम मतलब वो डेस्कटॉप वाला होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है हार्डवेयर से। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या 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 है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हम जान रहे हैं कि एक हमारे विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, मैक हो गए, डॉस हो गया, सारी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई। हाँ जी। हमारे पास एडिटर्स हो गए अलग अलग, जैसे आपका कौन सा नोटपैड के अलावा आप नोटपैड प्लस यूज करते थे। देन वीमियो है या क्या है उसका, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं पता है, हाँ वीमियो ही है शायद। Yes, sir. हाँ देन VS स्टूडियो। हाँ तो ये सारे विजुअल स्टूडियो है, देन ड्रीमवीवर है, तो ये सारे अलग अलग एडिटर्स है, तो वो आप यूज कर सकते हो। तो वो क्या हो गए, हमारे सॉफ्टवेयर हो गए। कंपाइलर्स हैं, वो हमारे क्या है, अगेन सॉफ्टवेयर हैं। देन हमारा .NET है, जावा है, PHP है, रूबी ऑन रेल है, ये सारे क्या है, पाइथन है, ये सारे क्या है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किससे बनी हुई है, अगेन ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर के हेल्प से, ठीक है। तो दीज आर नथिंग बट द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। अभी जब हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। One is application software and another one is your system software, correct? Now you are knowing the difference very well, I guess. So you tell me what's the difference in between this application software and system software.
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई वर्क को इजी बनाने के लिए किया जाता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज कंप्यूटर के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज कंप्यूटर्स के लिए किया जाता है। वी कैन इजी, तो बेसिकली दोनों सॉफ्टवेयर का पर्पस हमारे यूजर के टास्क को इजी बनाना ही है। पर बेसिकली अगर हम बहुत बेसिक उसका डिफरेंस देखें ना, तो एक आपने सही बोला सिस्टम वाला, कि जो सिस्टम के वर्क को अकम्प्लिश करने के लिए बनाया जाता है, मतलब कि हमारे ड्राइवर्स हैं कंप्यूटर के, जैसे कि ड्राइवर्स किसके लिए चाहिए होते हैं हमें, ये यूएसबी ड्राइवर होता है, देन हमारे कैमरा के लिए ड्राइवर चाहिए होता है, देन हमारे ये ईयरफोन्स के लिए भी ड्राइवर्स लगते हैं। तो वो जो सारे ड्राइवर के जो सॉफ्टवेयर है वो क्या हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या हो गई, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गई। तो सिस्टम को रन करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर की जरूरत है, दीज आर कंसीडर्ड एज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। whereas application software does means what, which are written by the user, मतलब कि आप खुद एप्लीकेशन डेवलपर जो है वो सॉफ्टवेयर बनाएगा, वो सॉफ्टवेयर का कोड करेगा और उसके लिए वो प्रोग्राम करेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाट्स योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये उसका बेसिक डिफरेंस है। दूसरा क्या आएगा डिफरेंस, और कुछ? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना रन System software, yes, our system will not work, computer will not work. Whereas application software है वो हमारी जरूरियात के, हमारी सहूलियत के हिसाब से उसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, ठीक है। दैट इज देयर। दूसरे एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं हमारे दोनों के बीच में? व्हाट व्हिच आर द एग्जांपल्स ऑफ आवर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए नाम सबलाइन हो गया, वर्चुअल स्टूडियो हो गया। हाँ जी। देन योर पूरा का पूरा हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह, तो वो सारा नोटपैड वगैरह वो सब कुछ उसमें आ गया। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखने जाए तो क्या आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जैसे कि आपका यूनिक्स है, देन आपका विंडोज है, मैकिंटोश है, देन आपका ओरेकल है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इट्स रिटर्न बाय द लाइक, मतलब कि प्रोग्रामर उसे बनाते हैं। जैसे कि आपने सी में अगर आपने बनाया है कि कैलकुलेटर बनाया सी के अंदर, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, आपने अपने लिए वो बनाया हुआ है, ठीक है। और अगर हम देखने जाए यहाँ पे सिस्टम के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर जो मुझे यहाँ पे सपोज ये कैलकुलेटर कुछ मिल रहा है, ये जो कैलकुलेटर है ये कौन इसे किसने बनाया होगा? दिस इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। मतलब कि ये जो सिस्टम है, लैपटॉप है, लैपटॉप के जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने प्री कोड किया हुआ है मेरे लिए, ये लैपटॉप के अंदर वो प्री कोडेड आता है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर। आर वी क्लियर विथ दिस थिंग्स? Okay, fine. So for today we are going to keep the class till this. Hope you enjoyed it. सबको समझ में आया है आज जो हमने पढ़ा है वो? Comfortable हो ना? Yes, ma'am. Okay, fine. So we are keeping till this. आज हम यहाँ तक का रखते हैं. In coming sessions we are going to progress in next chapter तो नहीं है, in next module. सेम चैप्टर का नेक्स्ट मॉड्यूल है, उसमें हम आगे जाएंगे। दूसरा, अगर बुक लानी है तो ला देना। दूसरी और एक चीज मुझे बतानी है, हम जो बात कर रहे हैं ना, जो भी डिस्कस करें उसके एटलीस्ट आप बुलेट पॉइंट्स लिखते जाना। यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू एनीथिंग, ये पूरा का पूरा आपको बुक ला दोगे आप तो बुक के अंदर तो सारी चीजें कवर हो ही रही है। पर हम मैं जो डिस्कस करती हूँ, जब तक बुक नहीं आता है आपके हाथ में तब तक एटलीस्ट राइट डाउन द बुलेट पॉइंट्स, की लास्ट में ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है या ऐसा हमें पढ़ाया ही नहीं गया है, ठीक है। दैट शुड नॉट बी द केस। दैट्स द ओनली रीजन। ब्रिंग लाइक टेक अ पेन एंड पेपर और उसके ऊपर आप लिखते जाओ जो भी हमारे बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे। इज दैट ओके? जस्ट कीप दैट इन प्रैक्टिस कि आप सिर्फ मेंशन करते जाओ कि क्या क्या बुलेट पॉइंट्स है, या फिर पेन पेपर नहीं रखना है, अपने लैपटॉप के अंदर आप सिर्फ मेंशन करो कि क्या क्या आज हमने किया है। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा डिटेल में लिखो करो, नहीं, बट एटलीस्ट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर हमने डिस्कस किया तो उतना लिख दो। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया तो वो लिख दो। देन कंप्यूटर, या फिर यहाँ पे जो मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ तो उसका स्क्रीनशॉट लेके वो वहां पे रख दो कि ये सारी चीजें हमने देखी हुई है, ठीक है। तो आपको लास्ट में ऐसा नहीं होगा कि हुआ ही नहीं है। ओके, फाइन। सो आई एम कीपिंग टिल दिस. Hope you enjoyed the class and have a lovely day. Bye.
Bye. Bye, ma'am. Bye. मागे